Hello students, in continuation of metabolic function of nitrogen in the plant, we have discussed about the chlorophyll formation, protein formation, amino acid formation and the porphyrin, and in this continuation next function is biosynthesis of nucleotide. So nucleotide, we know that nucleotide means they have very important role in formation of DNA and RNA, and actually these nucleotide are consist of phosphate and nucleoside. These are consist of phosphate group, phosphate plus nucleoside, and this nucleoside also consists of ribose sugar, and this ribose sugar is pentose sugar. Pentose sugar means number of carbon are 5 carbon sugar. Okay, ribose sugar plus nitrogen base, and again nitrogen base are two types: purine and another is pyrimidine. Okay, so there are two nitrogen base, purine and pyrimidine, and this purine is two type: adenine and guanine. Okay, and pyrimidine is thymine and cytosine, and another one pyrimidine is uracil. Okay, so that's why there is nitrogen base. Okay, that's why nitrogen is required for formation of nucleotide. Another important thing is this phosphate. So phosphorus is also part of nucleotide DNA and RNA. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए और आरएनए बनने के लिए नाइट्रोजन की भी जरूरत है और फास्फोरस की भी जरूरत है. अगर क्वेश्चन में आता है आपका ऑप्शन नाइट्रोजन एंड पी बोथ, देन ये आंसर आपका करेक्ट होगा. ओनली नाइट्रोजन करेक्ट नहीं है. तो आप ये देख सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में कौन पार्ट है? फास्फेट है, और यहाँ शुगर है, तो शुगर में क्या है? CHO है. तो CHO नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, दीज आर इन्वॉल्वड इन न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन. अब इसमें भी अगर हम थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर देख लें न्यूक्लियोटाइड का, कैसे प्यूरिन और pyrimidine जुड़ते हैं, इसको हम केवल बेसिक देखेंगे इसका. ओके, जस्ट फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग वी कैन सी दैट प्यूरिन एंड pyrimidine. Okay, this is adenine and this is guanine. Okay, and adenine is attached with thymine with double hydrogen bond, and guanine is attached with cytosine with triple bond. If this situation is there, this structure is DNA. Okay, and if adenine is combined with uracil and guanine with cytosine, okay, this is double bond, this is triple hydrogen bond. So double hydrogen bond and triple bond. This structure is RNA. Okay, so in RNA क्या होता है कि थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है. Okay, so these are the purine and pyrimidine nitrogen base which are helpful for the formation of nucleotide. तो इसका मतलब कि अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तब ये प्यूरिन pyrimidine नहीं बनेंगे. जब प्यूरिन pyrimidine नहीं बनेंगे तो डीएनए और आरएनए का कोई फॉर्मेशन नहीं होगा. सो दिस इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ नाइट्रोजन इन biosynthesis of nucleotide. Okay, next function is biosynthesis of low molecular weight organic nitrogen compounds. These low molecular weight organic nitrogen compounds are different types and very important for the different function in plants, and the important one are amino acids
amino acids and amides. Okay, so amides क्या है, NH2 ग्रुप है, और amino acids हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि amino acid किस तरह से बनता है. ओके, तो जो ये अमीनो एसिड्स और एमाइड हैं, ये क्या करते हैं, जो रिड्यूस फॉर्म होती है नाइट्रोजन की, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है. तो जो नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन है, इसी एमाइड्स और अमीनो एसिड्स की फॉर्म में नाइट्रोजन जो है मूव करती है. तो इनके फॉर्मेशन के लिए, नाइट्रोजन के मूवमेंट के लिए इनका बनना बहुत जरूरी है. अगर इनकी क्वांटिटी प्लांट में कम है एमाइड्स की या अमीनो एसिड्स की, तो क्या होगा, एक तो प्रोटीन कम बनेगी, दूसरा जो इसका रिमोवलेशन है या जो नाइट्रोजन का मूवमेंट है रूट टू शूट या किसी दूसरे प्लांट पार्ट में, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट वन इज यूराइड्स. यूराइड्स क्या होते हैं, एक्चुअल में यूराइड्स क्या है, यूरिया के ग्रुप हैं. दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम यूरिया, जिसमें क्या होता है, यूरिया में जो एक हाइड्रोजन ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, तो जो सब्सटेंस बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यूराइड्स कहते हैं. तो जो यूराइड्स का फॉर्मेशन हुआ है वो यूरिया से हुआ है. और प्लांट के अंदर जो इंपॉर्टेंट यूराइड है, दैट इज एलेंटोइन. एलेंटोइन, और इसी से क्या बनता है, एलेंटोइक एसिड. एलेंटोइक एसिड. ओके, एंड दिस एलेंटोइन is very important particularly for legume crop, because in legume pulse crop nitrogen move from root to shoot or other plant part in the form of this allantoin or allantoic acid. So urites are very important for legumes. For legumes, so nitrogen movement आ सकता है क्वेश्चन ये कि नाइट्रोजन मूवमेंट जो होता है लेग्यूम में किस फॉर्म में होता है, तो किस क्या कहेंगे, यूराइड्स फॉर्म में होता है. और यूराइड्स में पर्टिकुलरली कौन सा है, एलेंटोइन, और एलेंटोइन से क्या बनेंगे, एलेंटोइक एसिड. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे कंपटीशन के लिए. जब हमको टफ कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, हम इस तरह के क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करते हैं कि लेग्यूम में नाइट्रोजन किस फॉर्म में मूव करती है. अगर हम दूसरे क्रॉप में देखें, सीरियल्स में देखें, तो जो नाइट्रोजन का जो मूवमेंट है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, वो है ग्लूटामिन, glutamine and asparagine. These are two important form. Okay, इसी फॉर्म में ग्लूटामिन या एस्पाराजिन फॉर्म में नाइट्रोजन जो है सीरियल क्रॉस में मूव करती है, लेकिन लेग्यूम्स में पर्टिकुलरली किसमें है, यूराइड्स में है. ओके, सो दीज आर लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एंड अनदर वन लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर एमाइंस एंड पॉलीएमाइंस. Another important role of nitrogen is biosynthesis of amine and polyamine. Amine and polyamines. And these amines are formed by the decarboxylation of amino acids. Okay? तो ये amines और polyamines होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए. जो amines हैं, these are the fraction of lipid fraction of biomembrane. Okay, so they are involved in biomembrane. Biomembrane किसकी बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की. तो जो प्रोटीन का फ्रैक्शन रहता है वो अमाइन फॉर्म में रहता है. एंड that's why these are important for stability of biomembrane. So amines are important. तो स्टेबिलिटी, सेल स्टेबिलिटी के लिए अमाइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. देन these polyamines act as a secondary messenger. एंड सेकेंडरी मैसेंजर का हमने टर्म कहाँ पढ़ा था, जब हमने कैल्शियम के फंक्शन पढ़े थे. तो कैल्शियम एक्ट एज ए सेकेंडरी मैसेंजर. तो वो आप वीडियो देख सकते हैं कि सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं और कैसे जो है कैल्शियम सेकेंडरी मैसेंजर की तरह वर्क करता है. लेकिन यहाँ पे जो है पॉलीएमाइन एक्ट एज ए सेकेंडरी मैसेंजर एंड हेल्प इन सेल वॉल और सेल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे सेल की स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, सेल स्टेबिलिटी. Okay, so that's why nitrogen also help in stability of biomembrane, okay, and cell stability. And next nitrogen function in formation of low molecular weight organic nitrogen compound is the putrescine. Okay, and the most important polyamine is putrescine.
This is important polyamine. Actually, polyamines are three type. Okay, so these are three type. Number one is putrescine. Number two is spermidine, and number third is hermospermine. Okay, and out of these three polyamines, putrescine is very important for the plant because it has several functions. Okay, so what are the function of putrescine? Okay, so first one is cell division. It is involved in cell division. It is involved in embryogenesis, initiation of flowering. Then it delays the senescence. Then it has inhibitory effect on ethylene biosynthesis. और इथाइलिन बायोसिंथेसिस को कम करता है क्योंकि इथाइलिन बायोसिंथेसिस जैसे ही ज़्यादा होगा सेनेसेंस होने लगेगा, तो इथाइलिन के बायोसिंथेसिस कम करता है. एंड इट प्रोटेक्ट द मेम्ब्रेन बाय स्कैवेंजिंग द फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स. तो और ये फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स क्या करते हैं, लिपिड पोर्शन के साथ मेम्ब्रेन के रिएक्शन करके उसको खत्म कर देते हैं. तो इसका मतलब ये पटरूसिन क्या करेगा कि उसको स्कैवेंजिंग करेगा, उसको खत्म करेगा फ्री रेडिकल्स को. तो सेल वॉल की स्टेबिलिटी को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है. तो ये पॉलीएमाइन्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो एक तरह से ये सेल के स्ट्रक्चर्स को काफी मेंटेन करके रखते हैं और ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं. तो जो मैंने बताया कि पॉलीएमाइन्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, पटरूसिन. ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड which is low molecular weight is betaine. This putrescine is also important to alleviate the effect of salinity. So salinity stress को क्या करता है, ये कम करता है. तो अगर salinity ज़्यादा होगी तो प्लांट में putrescine फॉर्मेशन होगा और salinity stress को क्या करेगा, कम होगा. उसकी बहुत बड़ी बायोकेमिस्ट्री है, डिफरेंट तरह के उसके मैकेनिज्म है. तो उसको हमें नहीं पढ़ना है, हमको केवल समझना है कि पटरूसिन कैसे हेल्प करता है. तो हमने देखा पटरूसिन कई तरह से हेल्प कर रहा है. जो नेक्स्ट है दैट इज बिटाइन. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट लो मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, बिटाइन. एक्चुअली बिटाइन इज ट्राइमिथाइल ग्लाइसिन. Glycine. So it is also referred as glycine betaine. Okay, and this has very important role, particularly in osmoregulation. तो जो osmoregulation का जो रोल है वो बिटाइन बहुत इफेक्टिव वे में करता है, पर्टिकुलरली सैलिनिटी स्ट्रेस में. जब सोडियम बहुत ज़्यादा हो जाए, क्लोराइड बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ऑस्मोटिक रेगुलेशन के लिए इसका फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सैलिनिटी स्ट्रेस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि पटरूसिन का था सैलिनिटी स्ट्रेस. ओके, अंडर सैलिनिटी स्ट्रेस और ड्रॉट स्ट्रेस इट काउंटर द इफेक्ट ऑफ दिस सोडियम एंड क्लोराइड. ओके, अगर हम देखें पटरूसिन और बिटाइन के, तो सैलिनिटी स्ट्रेस में पटरूसिन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है. तो अगर हम थोड़ा सा इसकी याद करने का तरीका देखें तो पटरूसिन पुत्र ऐसा लग रहा है, बेटा, और ये क्या है, बेटा. दोनों क्या है, पर्यायवाची है, पुत्र और बेटा. तो पटरूसिन एंड बिटाइन, इनके क्या है, पटरूसिन एंड बिटाइन दोनों ही क्या करते हैं, सैलिनिटी स्ट्रेस में इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ओके, और इसमें लेकिन जो पॉलीएमाइन्स मैंने बताया था, ये पॉलीएमाइन्स है, और जो पॉलीएमाइन का प्रिकर्सर है वो आर्जिनिन है. आर्जिनिन. तो आर्जिनिन से ही क्या बनेगा, पटरूसिन फॉर्मेशन स्टार्ट होगा. तो जो अनदर जो है बिटाइन देखा और हमने पटरूसिन देखा, तो दोनों के काम किसमें है, सैलिनिटी स्ट्रेस में है. और ये बिटाइन क्या करेगा, जो सैलिनिटी स्ट्रेस को इनकाउंटर करते हैं तो सेल स्टेबिलिटी में भी ये हेल्पफुल होते हैं. तो इनसे क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, सेल के मेटाबॉलिक फंक्शन मेंटेन रहते हैं, और सैलिनिटी स्ट्रेस को ये ओवरकम करते हैं. हाउ, सैलिनिटी स्ट्रेस कैसे कम करते हैं, बाय osmoregulation. Okay, whenever there is a salinity stress or water stress or drought or low temperature or high temperature, proline amino acid is accumulated into the plant. Proline, this amino acid is very important. In generally examination asked which amino acid is accumulated under drought condition or salinity condition, that is proline.
तो ये इसका एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है और ये इसमें हेल्प करता है इन सारे इसमें सैलिनिटी स्ट्रेस को, या ड्राउट आ गया हो, या बहुत हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो। एंड दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। देन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो हैं उनको भी खत्म करने में, उनको स्कैवेंजिंग करने में इसका वर्क प्रोलीन का होता है। तो आरओएस के प्रोडक्शन को भी क्या करता है, कम करता है, स्कैवेंजिंग करता है। तो सैलिनिटी स्ट्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैवेंजिंग ऑफ आरओएस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोलीन का एक्यूमुलेशन स्ट्रेस में, अगर किसी अमीनो एसिड्स का स्ट्रेस में कंडीशन बढ़ता है कंसंट्रेशन, दैट इज प्रोलीन। और ये प्रोलीन क्या है, प्रोटीन है, इसी प्रोटीन में भी हेल्प करेगा। दूसरा क्या है, न्यूट्रिशनल सोर्स की तरह भी वर्क करता है। तो प्रोटीन में तो हेल्प करता है, आल्सो ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो आप इस प्रोलीन को बहुत याद रखें, ये इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स है। डिफरेंट अमीनो एसिड्स के डिफरेंट रोल मैंने आपको बताए हैं। एंड द नेक्स्ट लो मोलिकुलर वेट organic nitrogen compound are polypeptide. Polypeptide क्या है, देखिए पॉलीपेप्टाइड क्या है, जो पेप्टाइड चेन है उससे अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं, चेन बनते जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीपेप्टाइड। तो जो पॉलीपेप्टाइड के एमाइड्स की बहुत लंबी चेन हो जाएगी अमीनो एसिड्स के साथ, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चेन है वो सिस्टीन के साथ है। सिस्टीन, जिसमें सिस्टीन जो है अमीनो एसिड जो है ज्यादा रहेगा। तो ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन होता है जब कोई हैवी मेटल हो। तो हैवी मेटल के रिस्पॉन्स में, पर्टिकुलरली कैडमियम के रिस्पॉन्स में ये पॉलीपेप्टाइड बनने लगते हैं और फाइटोचिलेशन का वर्क करते हैं। तो ये वर्क हमने किस में देखा था, सल्फर के मेटाबॉलिक फंक्शन में भी हमने पढ़ा था, फाइटोचिलेशन में कैसे हेल्प करता है सल्फर। तो सेम फंक्शन यहीं भी है, क्योंकि जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी उसमें नाइट्रोजन भी चाहिए, सल्फर तो चाहिए। तो ये फंक्शन जो है कॉमन हो गया, नाइट्रोजन का भी और सल्फर का भी। तो आप सल्फर का भी वीडियो जरूर देख लें कि कैसे पॉलीपेप्टाइड या फाइटोचिलेशन हो रहा है। तो जब ये पॉलीपेप्टाइड बनेगी चेन जिसमें सिस्टीन का कंटेंट ज्यादा होगा, और हैवी मेटल के रिस्पॉन्स में ये बनती है कि जब हैवी मेटल होंगे सॉइल में, प्लांट उसको ऑब्जर्व करेगा तो पॉलीपेप्टाइड चेन बननी शुरू हो जाएगी, और पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जाकर के ये जो हैवी मेटल उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगी और उसका फर्दर मेटाबॉलिक फंक्शन में उसको नहीं आने देगी, हिंड्रेंस करेगी। ओके, अगर ये फ्री रह गया, कैडमियम या मरकरी फ्री रहेगा, तो प्लांट मेटाबॉलिज्म के साथ क्या करते हैं, दे अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म। ओके, सो दिस इज a sort of phytochylation. Okay, and important amino acid is cysteine. Okay, so nitrogen in this way also help in overcoming heavy metal toxicity by formation of polypeptide, particularly rich in cysteine. Okay, so we learned about the biosynthesis of low molecular weight organic nitrogen compound, and we discussed about the amino acids, एमाइड्स। मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूं। दूसरे पे हमने क्या पढ़ा, यूराइड्स, फिर हमने क्या पढ़े, एमाइन्स एंड पॉलीएमाइन्स, एमाइन्स एंड पॉलीएमाइन्स। एंड पॉलीएमाइन्स में विच वन इज इंपॉर्टेंट, प्यूट्रिसिन। एंड दिस प्यूट्रिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सैलिनिटी स्ट्रेस। ओके, देन फोर्थ हमने क्या पढ़ा, बिटाइन। और बिटाइन का भी क्या है, इंपॉर्टेंट रोल, ऑस्मो रेगुलेशन है, पर्टिकुलरली अंडर सैलिनिटी स्ट्रेस एंड ड्राउट कंडीशन। ओके, कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूं, सोडियम को इनकाउंटर करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, पॉलीपेप्टाइड पर्टिकुलरली इन रिस्पॉन्स टू हैवी मेटल, एंड दिस पॉलीपेप्टाइड आर रिच इन सिस्टीन। सो ये जो है लो मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है, इनके बायोसिंथेसिस होगा तो प्लांट को किसी भी स्ट्रेस को ओवरकम करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज बायोसिंथेसिस ऑफ लिग्निन। ओके, एंड दिस लिग्निन आर फेनोलिक कंपाउंड्स। ओके, एंड जनरल फार्मूला इज C31H34O11 एंड इट इज पॉलीमर। ओके, तो ये चेन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब आप इसमें देखिए कहीं भी नाइट्रोजन नहीं है, तो जब नाइट्रोजन नहीं है लिग्निन में, तो नाइट्रोजन कैसे इसको हेल्प कर रही है फॉर्मेशन में। तो देखिए लिग्निन का जो बायोसिंथेसिस है वो कई स्टेप में है, तो उस स्टेप में नाइट्रोजन के जो एमिनो एसिड्स हैं वो रोल प्ले करते हैं एज ए प्रीकर्सर। तो इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड्स हैं, फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन।
These two amino acids are precursor for the synthesis of lignin. और lignin के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, किसका पार्ट होता है ये, सेल वॉल में पार्ट होता है, सेल वॉल की रिजिडिटी को देता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ मिलती है इससे। तो लिग्निन का फॉर्मेशन होगा तो प्लांट को क्या मिलेगी, स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी, उसमें लॉजिंग नहीं होगी। ओके, तो अब आप फिर से समझ लीजिए कि लिग्निन का जो फॉर्मूला है उसमें कहीं भी नाइट्रोजन नहीं है। कैसे हेल्प कर रहा है ये, फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन एक्ट एज ए प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ लिग्निन। नेक्स्ट important metabolic function of nitrogen is biosynthesis of phytocytophore. Phytocytophores क्या होते हैं? Phytocytophores क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको रूट सिक्रीट करती है सॉइल में जब किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो। पर्टिकुलरली आयरन के केसेस में बहुत साइटोफोर्स अवेलेबल है जो प्लांट जो उसको सिक्रीट करता है। तो ये फाइटोसाइटोफोर्स के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन हेल्प करती है। कैसे? एज ए प्रिकर्सर नाइट्रोजन को जो अमीनो एसिड्स है, मिथियोनिन जो है, मिथियोनिन इज प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फाइटोसाइटोफोर, दैट इज म्यूजेनिक एसिड। इसमें कई तरह के फाइटोसाइटोफोर्स हैं, उसमें जो है दैट इज म्यूजेनिक एसिड। म्यूजेनिक एसिड, और ये जो म्यूजेनिक एसिड है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन इन सीरियल क्रॉप्स। तो और नाइट्रोजन होगी तो क्या होगा, ये म्यूजेनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा क्योंकि इसमें हेल्प करेगा मिथियोनिन। और आयरन की डेफिशिएंसी अगर होती है तो म्यूजेनिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, रूट उसको सिक्रीट करेंगी और आयरन के साथ कंबाइन करके उसे रूट के अंदर ले आएंगे, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो फाइटोसाइटोफोर्स का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी न्यूट्रिएंट के एक्विजिशन के लिए, पर्टिकुलरली माइक्रोन्यूट्रिएंट। उस माइक्रोन्यूट्रिएंट में किसके लिए, आयरन के लिए फाइटोसाइटोफोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो म्यूजेनिक एसिड को आप याद रखें, और इसका जो अमीनो एसिड कौन सा है, प्रिकर्सर मिथियोनिन। अनदर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ नाइट्रोजन इज बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन। Okay, so two hormone, auxin and cytokinin. Auxin and cytokinin. These two hormones require nitrogen for their biosynthesis. तो नाइट्रोजन अगर नहीं है या डेफिशिएंसी है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन किस में हेल्प करता है, एलोंगेशन में हेल्प करता है, तो इसका मतलब प्लांट क्या रहेंगे, स्टेंटेड रहेंगे। साइटोकाइन किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में करता है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी होगी तो क्या, सेल डिवीजन भी नहीं होगा। ओके, तो जो ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही रीजन होता है कि जब नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी होती है तो प्लांट हाइट कम रहती है, पत्तियां उसकी छोटी रहेंगी, ट्रिलिंग उसमें कम होगी। तो सारे किसके इफेक्ट है, ये हार्मोन्स ना बनने के इफेक्ट है। और भी कई इफेक्ट है, लेकिन जो हार्मोनल जो इफेक्ट है वो किसके कारण है, ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन का फॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा। एंड सिमिलरली नाइट्रोजन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन बी के फॉर्मेशन, विटामिन बी के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अगर नाइट्रोजन नहीं हो तो ये विटामिन बी का सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि विटामिन बी के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन इन्वॉल्व रहती है। तो जब नाइट्रोजन नहीं रहेगी तो स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा, तो विटामिन बी का बायोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इसको आप याद रखेंगे, कौन से विटामिन के सिंथेसिस के लिए जरूरत होती है, विटामिन बी के लिए। कौन से हार्मोन के लिए, ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन। तो हमको अमीनो एसिड्स पता होने चाहिए, कौन सा अमीनो एसिड किस में हेल्प कर रहा है। तो एक बार उसको समराइज कर लेते हैं सारा, ठीक है। सबसे पहला जो है बेस जो है हमारा किससे है, ग्लूटामिक एसिड है। ओके, देन ग्लूटामिन एंड एस्पेराजिन। ये किसमें क्या रोल है इनका जो है सीरियल क्रॉप्स में या पोएसी फैमिली, ग्रेमिनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उसमें नाइट्रोजन जो है इनके इस फॉर्म में उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, देन एलेंटोइन किसमें है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स में है। ओके, तो ये किसमें है, ग्रेमिनी में है, पोएसी फैमिली में है, पोएसी दिस इज लेग्यूमिनोसी। ओके, लेग्यूम प्लांट्स में है, लेग्यूम प्लांट्स में रहेगा। ओके, प्रोलीन
प्रोलीन क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी मूव करता है, लेकिन जो प्रोलीन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है किसमें है, वो स्ट्रेस कंडीशन में है। स्ट्रेस कंडीशन में ये क्या रहेगा, एक्यूमुलेट रहेगा, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। देन कौन सा नेक्स्ट जो है मिथियोनिन। मिथियोनिन, मिथियोनिन का किसमें बताया था, मिथियोनिन का है म्यूजिनिक एसिड में, म्यूजिनिक एसिड में फाइटोसाइटोफोर्स में है। फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन, ये किसका किसमें रोल करते हैं, ये लिग्निन में रोल करते हैं। सिस्टीन, सिस्टीन का किसमें है, सिस्टीन का पॉलीपेप्टाइड चेन में, जिसमें क्या करता है, फाइटोचिलेशन का वर्क करता है। ओके, तो ये कुछ अमीनो एसिड्स हमको पता होने चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट जो एक बहुत है प्यूट्रिसिन, जो आपको पता होना चाहिए, प्यूट्रिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये पॉलीएमाइड्स है। सबसे पहले प्लांट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। सबसे पहले क्या बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, शुगर बनेंगे, हेक्सो शुगर बनेंगे। ओके, दिस इज द सिंपल प्रोसेस। एंड आफ्टर दिस the proteins are formed, then lipids are there and several things are there. Okay, so first product are sugar. Okay, और इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, प्रोटीन्स का बनना स्टार्ट होता है। तो अगर हम नाइट्रोजन की सप्लाई प्रॉपर है तो इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगी। और जो एनर्जी ड्राइव होगी या जो कार्बन स्केलेटन ड्राइव होगी, कहाँ से होंगे, कार्बोहाइड्रेट से होंगे। इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन देन देयर विल नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट विल एक्युमुलेट इनटू द प्लांट पार्ट। तो ऐसे केस में क्या होगा कि प्लांट पार्ट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट एक्युमुलेट करने लगेंगे। ओके, if there is sufficiency of nitrogen, adequate nitrogen is there, then protein formation will be there। और प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए क्या होगा कि जो कार्बन स्केलेटन आएगा या जो एनर्जी ड्राइव होगी, कहाँ से आएगी, कार्बोहाइड्रेट से आएगी। तो ऐसे केस में एक प्रॉपर बैलेंस होगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बीच में। ओके, तो जब प्रोटीन बननी स्टार्ट हो जाएगी तो प्रोटोप्लाज्म बनेगा। नाइट्रोजन किसमें इन्वॉल्व होगी, प्रोटोप्लाज्म में होगी। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, हाइड्रेटेड होता है, सक्लेंसी होती है। तो प्रोटोप्लाज्म ज्यादा बनेगा तो क्या होगा कि सक्लेंसी बढ़ेगी प्लांट की। तो इसी यही रीजन होता है कि ज्यादा हम नाइट्रोजन अगर हम देते हैं तो प्रोटोप्लाज्म ज्यादा बनने से सक्लेंसी बढ़ने लगती है। तो जो यूटिलाइजेशन जो कार्बोहाइड्रेट का है आल्सो डिपेंड्स अपॉन नाइट्रोजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स का हमें प्रॉपर यूटिलाइज करवाना है, जब प्लांट को यूज करना है तो नाइट्रोजन में क्या होनी चाहिए, एडुकेट अमाउंट में होनी चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा नाइट्रोजन डाल देंगे, प्रोटीन बनने लगेगी, सॉल्युबल कंपाउंड्स रहेंगे, सक्लेंसी बढ़ जाएगी, प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर लॉजिंग होने लगेगी या दूसरे चांस हो जाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि इंसेक्ट्स और डिसीज का भी इन्फेस्टेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। डिसीज इंसेक्ट उसमें ज्यादा होंगे क्योंकि प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा है, नाइट्रोजन किसमें रहेगी, सॉल्युबल कंपाउंड में रहेगी। ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज नाइट्रोजन डिफिशिएंसी देन कार्बोहाइड्रेट विल एक्युमुलेट, देयर विल बी नो प्रोटीन फॉर्मेशन। और प्रोटीन फॉर्मेशन और अमीनो एसिड फॉर्मेशन हमने देखा कितना इंपॉर्टेंट है दूसरी चीजों के बनने के लिए। तो क्या होगा, जब अमीनो एसिड्स नहीं बनेंगे, प्रोटीन नहीं बनेंगे, तो बाकी के दूसरे मेटाबॉलिक फंक्शन भी क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिपेंड्स अपॉन द नाइट्रोजन अमाउंट। तो ये हमने सीखे थे नाइट्रोजन के मेटाबॉलिक फंक्शन में, जो मैंने आपको दो पार्ट में बताए हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। आप इन दोनों पार्टों को देखिए तो मुझे ये विश्वास है कि इन दोनों पार्ट्स को जब आप देखेंगे नाइट्रोजन के फंक्शंस आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे। और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नाइट्रोजन से रिलेटेड आता है तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैं आगे जो क्वेश्चंस बनाऊंगा वो इन जो मैंने लेक्चर्स दिए इसी के बेस पे बनाऊंगा। इन लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिए और इनको नोट करिए। थैंक यू वेरी मच।